Chapter From Trade to Territory, Class 8th, Chapter number 2, Our Pasts. Students, let's recall. आइए याद करें. Match the following. You have to match these: Diwani, Tiger of Mysore, Faujdari Adalat, Rani Chinnamma, and Sipahi with Tipu Sultan, Right to Collect, and Sepoy, Criminal Court, led an anti-British movement in Kittur. So its answer is Diwani. What is? It is a matter of finance. Diwani, right to collect land revenue, भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार. Tiger of Mysore, Tipu Sultan was called Tiger of Mysore. Tipu Sultan was the son of Hyder Ali and fought many wars with Britishers, or you may say British East India Company. Faujdari Adalat, it is criminal court, आपराधिक न्यायालय. Rani Chinnamma, who was Rani Chinnamma? Rani Chinnamma led an anti-British movement in Kittur. अंग्रेजों के खिलाफ आपने कित्तूर में, ठीक है, नेतृत्व किया था. सिपाही, सिपॉय, आर्मी का सिपाही. Fill in the blanks. The British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey. The British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey in 1757. Battle of Plassey was fought between Robert Clive and Siraj-ud-Daulah. Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of Mysore, Karnataka at present. Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of Mysore. Next, Dalhousie was a governor general from the period 1848 to 1856. Dalhousie implemented the doctrine of lapse. इसको लैप्स की नीति कहा जाता था. डलहौजी implemented the doctrine of lapse. हिंदी में इसे विलय की नीति, यानी कि बहुत सारे देसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की जो नीति थी उसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था. There were so many regions to merge the indigenous states in the British East India Company state. D. Maratha kingdoms were located mainly in the dash part of India, southwestern part of India. Maratha kingdom, Maratha means the inhabitant of Maharashtra, were located mainly in the western and southwestern parts of India, Maharashtra, Karnataka, Konkan, Goa, some parts of Gujarat. Okay, next state, whether true or false. A. The Mughal Empire became stronger in the 18th century. False. Mughal Empire became stronger. No. After the death of Aurangzeb in 1707, Mughal Empire became weaker. So it is false. B. The English East India Company was the only European company that traded with India. It is false. There are so many European companies from France, Portugal, Holland, which have a right to trade with India. You may say the English East India Company was the only company of England which has a sole right to trade with India. So it is false. Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. True. Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. True. D. The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. False. The British did not introduce administrative changes. Certainly, the Britishers introduced administrative changes in the territories won by them. उन्होंने प्रशासनिक
जो है वहाँ पर परिवर्तन किए, अपने व्यक्तियों को नियुक्तियाँ दी और भी वहाँ बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने किए. सो इट इज फॉल्स. लेट्स डिस्कस what attracted European trading companies to India. Question number 4. What attracted European trading company to India? यूरोपीय कंपनीज को भारत से व्यापार करने के लिए कौन कौन सी चीजें आकर्षित करती थी? अट्रैक्टेड European trading company to India. Its answer is European trading companies were attracted to India because of a number of reasons. Trading with India was highly profitable and fruitful to the businessmen in Europe. Next, the European trading companies purchased goods at cheaper and sold them in Europe at higher prices. Next, the fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Next, Indian spices like pepper, cloves, cardamom, and cinnamon were in great demand in Europe. So, these are the reasons for the attraction of trade to India. European trading company were attracted to India because of a number of reasons. Trading with India was highly profitable. यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ था बिजनेस, यूरोपियन बिजनेस के लिए. सेकेंड है द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी परचेज गुड्स एट चीपर. यहाँ से सस्ती वस्तुएं खरीदती थी और यूरोप में महंगे दामों पर बेचती थी, तो ज़्यादा फायदा होता था. द फाइन क्वालिटीज़, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की कॉटन और सिल्क मिलती थी और जो यूरोप में हाथों हाथ बिक जाती थी. और इंडियन स्पाइसेस, भारत के जो मसाले हैं, पेपर, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ठीक है, इस तरह की दालचीनी, वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप. यूरोप में उनकी बहुत डिमांड थी. नेक्स्ट, what were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? What were the areas of conflict? झगड़े के क्या कारण थे बंगाल के नवाबों और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच? Answer is, students, in the 18th century, after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy. Through the 18th century, the conflict between them and the East India Company intensified. The Nawabs refused to grant the company concession, demanded large tributes, denied it the right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and also undermining their authority by refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and humiliating them and their officials. On the other hand, the company declared that its trade was getting ruined because of unjust demands of the local officials. It believed that trade could only flourish if the duties were removed. To expand trade, it wanted to enlarge its settlement, buy up villages, and rebuild its forts. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि बंगाल के नवाबों और अंग्रेजी जो कंपनी थी उनमें झगड़े के क्या कारण थे. झगड़ा शुरू होता है डेथ इन द 18th सेंचुरी, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707. जो बंगाल के नवाब थे, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, उन्होंने सारा राज्य संभाल लिया. असर्टेड द पावर एंड ऑटोनॉमी. ठीक है, वो वहां के राजा बन गए. थ्रू द 18th सेंचुरी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटेंसिफाइड. नवाबों के बीच में और अंग्रेजी कंपनी के बीच में झगड़े बढ़े, इंटेंसिफाइड हुए. नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन. नवाबों ने वो कंसेशन देने बंद कर दिए जो औरंगजेब बादशाह ने दिए थे. डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स.
जो वहाँ के नवाब थे वो कंपनी से ज़्यादा गिफ्ट्स जो हैं, उपहार जो हैं, वो मांगने लगे। डिनाइड इट द राइट टू मिंट कॉइन्स, और उनको मना कर दिया कंपनी को कि आप अपने सिक्के यहाँ ढाल नहीं सकते। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मीन्स किले, कि आप किला भी नहीं बना सकती। दे क्लेम दैट, नवाबों ने दावा किया, द कंपनी वॉज डिप्रीविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि कंपनी नवाबों को टैक्स नहीं दे रही, जिससे नवाबों का राजस्व घट रहा है। एंड ऑल्सो अंडर माइनिंग देयर अथॉरिटी बाय रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। ठीक है, और उनके जो टैक्स भी नहीं दे, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर एंड ह्यूमिलेटिंग देम एंड देयर ऑफिशियल्स। और उन्होंने उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे और कंपनी के अधिकारियों को अपमानित किया। ऑन द अदर हैंड, कंपनी वाले क्या चाहते थे? द कंपनी डिक्लेयर दैट इट्स ट्रेड वॉज गेटिंग रूइंड। कहते हैं कि जब से नवाबों का शासन आया है उनका सारा व्यापार रूइंड हो गया है, नष्ट हो गया है, बिकॉज ऑफ अनजस्ट डिमांड of the local official. It believed that trade could only flourish if the duties were removed. To expand trade, it wanted to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its forts. कि वो उनको फोर्ट्स बनाने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट, हाउ डिड द assumption of Diwani benefit the East India Company? कंपनी को बंगाल की दीवानी यानी कि फाइनेंशियल राइट्स मिल गई। हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी? द दीवानी राइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी benefited in several ways. The Diwani allowed the company to use vast revenue resources of Bengal. दीवानी राइट यानी कि जो खजाने के अधिकार मिलने के बाद कंपनी के जो रेवेन्यू स्रोत थे, कंपनी की आमदनी बहुत बढ़ गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपलाइज्ड ट्रेड एंड बिगिन डायरेक्ट प्लंडर ऑफ इंडियाज वेल्थ। द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपलाइज्ड ट्रेड, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया व्यापार पर, उसकी कंपटीशन में कोई नहीं रहा। बिगिन डायरेक्ट प्लंडर ऑफ इंडियाज वेल्थ, और भारत की जो संपदा थी उसके साथ वो खेलने लगे। Revenues from India financed company expenses. Revenues from India financed company expenses. और कंपनी की जो खर्चे थे वो भारत के पैसे से ही चलने लगे। These revenues were used to purchase cotton, और भारत के पैसे का ही उपयोग वो कॉटन खरीदने में करने लगे। एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, सिल्क खरीदने में इन इंडिया मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी की जो सेना थी उसका खर्चा भी हमारे पैसे से ही करने लगे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कैलकाटा, और कैलकाटा में जो भी ऑफिस बनाने थे उनका सारा खर्चा वो भारतीय राजस्व से ही होने लगा। द कंपनी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर टू मोनोपलाइज ट्रेड एंड डिक्टेट टर्म्स। दे कुड इम्पोज देयर ओन प्राइसेस दैट हैड नो रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कंपनी का एकाधिकार हो गया माल खरीदने के लिए। अब कंपनी मनमाने दाम यानी कि सस्ते दाम पर जो है स्थानीय लोगों के उत्पाद खरीदती थी, यानी कि उनकी चीज़ें खरीदती थी। द कंपनी यूज रेवेन्यू ऑफ बंगाल टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स। द कंपनी यूज रेवेन्यू ऑफ बंगाल टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स। अब भारतीय चीज़ों को दूसरे देशों में भेजना कंपनी के लिए आसान हो गया, क्योंकि अब कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि। जब अंग्रेजी राज्य 1757 में बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक्सिस्टेंस में आया, तो कंपनी का जो राज्य का जो प्रसार है, फैलाव है, वो बढ़ गया। उसके बाद कंपनी एक ऐसी नीति लेकर आई जिससे भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाना
आसान हो गया। इस नीति को सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। इसका आंसर रीड करें आप मेरे साथ। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 and gaining the Divani of Bengal, the company began to expand its rule in many parts of India. 1757, 1764 और बंगाल के जो फाइनेंशियल राइट मिलने के बाद, दीवानी ऑफ बंगाल मिलने के बाद कंपनी का जो साम्राज्य है वो फैलने लगा। For that, it had devised several plans. One among them was subsidiary alliance. हिंदी में इसे सहायक संधि कहा जाएगा। According to the terms of alliance, इसकी शर्तें क्या थी? Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। They were to be protected by the company, but pay for the subsidiary forces that a company was supposed to maintain for the purpose of their protection. यानी कि उन्होंने कहा राजाओं को कि आपको सेना रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो रक्षा करेगी वो सब्सिडरी फोर्सेस करेगी। राजा खुश हो गए, परंतु उन्होंने शर्त लगाई कि जो सब्सिडरी फोर्सेस रखने का जो खर्चा है वह राजा को ही देना होगा। If the Indian rulers failed to make payment, then the part of territory was taken away by the company as penalty. यदि राजा इस तरह से नहीं कर सका, खर्चा नहीं दे सका, तो उसका राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। For example, in 1801, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company for failing to pay for the subsidiary forces. अवध का जो नवाब था उसको पेमेंट की व्यवस्था वह नहीं कर सका, तो इसलिए उसको आधा राज्य, हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी को देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन व्हाट वे वाज द administration of the company different from that of Indian rulers? कंपनी का जो शासन था वह भारतीय जो शासक थे उनसे किस तरह अलग था? ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अंग्रेजों ने अपने जो राज्यों को प्रेसिडेंसीज में बांटा। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज लाइक बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। एक प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है, बॉम्बे आजकल मुंबई कहा जाता है। वेयर इज अंडर द इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और जो भारतीय शासक थे वो किस तरह से बांटते थे? डिस्ट्रिक्ट, जिला, परगना, तहसील एंड विलेजेस। वो जिला में, परगना में, तहसील में और गांवों में बांटती थी। ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर। और जो प्रेसिडेंसी का जो शासक होता था अंग्रेजों के समय में उसे गवर्नर कहा जाता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और पूरे भारत में अंग्रेजी राज्य का जो शासक होता था सबसे बड़ा, उसको गवर्नर जनरल कहा गया। वेयर इज अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द सुप्रीम हेड वाज द किंग और नवाब। और भारत में जो देसी राजा थे वहाँ नवाब या राजा जो है हेड होती थी। वैरन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। वैरन हेस्टिंग्स ने भारत में नई न्याय प्रणाली की जो है स्थापना की। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। प्रत्येक जिले में 2 तरह की अदालत होंगी, सिविल अदालतें और क्रिमिनल कोर्ट यानी कि दीवानी और फौजदारी। फौजदारी में आपराधिक मामले चलाए जाते हैं और सिविल में गैर आपराधिक मामलों चलाए जाते हैं। द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जो डीसी होते थे वो सिविल कोर्ट्स के ऊपर
जो है अधिकार रखती थी। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती, और जो आपराधिक जो न्यायालय थे वह अभी भी काजी और मुफ्ती के अधीन कार्य कर रहे थे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, और 1773 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। द मेन फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज कलेक्टर। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अकॉर्डिंग टू हिज टाइटल कलेक्टर, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट the revenue and the taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas। और जो कलेक्टर होता था, जिसे आजकल डीसी कहा जाता था, वह सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करता था और कानून व्यवस्था अपने ज़िले में बनाए रखता था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगाओं की सहायता से। Question number 9. Describe the changes that occurred in the composition of the company's army. कंपनी की आर्मी की बनावट का वर्णन करें। During the 18th century, when the East India Company began recruitment for its own army, 18वीं शताब्दी में कंपनी ने अपनी सेना इकट्ठा शुरू कर दी